اور یہ بہت زبردست کلیکشن ہے. رولز رائس تو آپ لوگوں نے دیکھا ہی ہوگا. ریڈ کنورٹیبل ہے. اور اس گاڑی کی بات کی اور آپ کو سمجھ گیا ہے فرنٹ پہ آپ کو یہ تھنڈربرڈ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے, بہت مشکل سے ملی ہے. یہ جو ہے میں نے بڑے کلیکشن کیٹلگ کا سائز ہے, کیلیفورنیا سے منگایا. کیٹلگ کا سائز دیکھیں ٹھیک ہے نا, یہ کیلیفورنیا اور اس کا کنورٹیبل ہے. یہ دیکھیں کہ اس کا چھت ہوتا ہے سر پورا چھت کرنا. صاف ستھرا. آج اس کو نکالتا ہوں میں, آج اس کو لے کر جاؤں گا سی ویو بیچ پہ. اس کا فرنٹ آپ دیکھیں, اس کے لکس آپ دیکھیں, اس کے سائن آپ دیکھیں, پھر آپ اس پہ آ جائیں. یہ ہے رولز رائس. یہ رولز رائس کا آپ یہ سائز پہ دیکھیں گے تو تھوڑا دیکھیں یہ اس کا لک اصل یہ بنتا ہے. یار اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ یہ ہماری بیسٹ گاڑی ہے. باقی یہ آپ لوگوں کو پہلے بھی دکھا چکا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نگہبان پاکستان, میں قربان عمران خان. یہ اسپیشل جو آپ کو دکھایا تھا نا, یہ کلپ, یہ تھا نبیل گبول صاحب. ایم این اے بھی رہے, منسٹر بھی رہے, ایم سے بھی آئے, پیپل پارٹی سے بھی آئے, پی ٹی آئی میں بھی آئے, پھر چلے گئے اب پیپل پارٹی میں. یہ ان کا کار پول ہے, کار پول. سندھ گورنمنٹ کا اتنا بجٹ نہیں ہے جتنے بجٹ کی اس کے پاس کاریں ہیں. کسی نے پوچھا کہ تو نے ان پہ ٹیکس دیا؟ کسی نے پوچھا کہ یہ گاڑیاں جب منگوائی گئی کسٹم ڈیوٹی پے کی ہے تو نے؟ کسی نے نہیں پوچھا. کسی نے پوچھا کہ تیرا کاروبار کیا ہے؟ یہ جو 1 ارب کی گاڑی تو رکھی ہوئی ہے, تیرا کاروبار کیا ہے؟ یہ کہے گا اگر میرا گاڑیوں کا اینٹیک گاڑیاں خریدنے بیچنے کا, بالکل ٹھیک. اس کے اوپر ٹیکس تو دیتا ہے. جو تو نے شروع کی تھی جس دن پہلے دن سے اس گاڑی کے اوپر تو نے ٹیکس دیا تھا, اس کے بعد تو نے وہ بیچی تو وہ ٹیکس میں کاؤنٹ کی تھی؟ نہیں, کہیں بھی نہیں کیا. لیکن بس کیا کیا جائے, جب کسی آرمی چیف کے موڈے پہ بیٹھ کے بندہ آئے تو پھر یہ ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, چاہے وہ باجوہ ہو, تو چاہے وہ کیانی ہو, تو چاہے وہ جناب علی عاصم منیر ہو, پھر کام نہیں ہوتے, کوئی ان کو پوچھنے والا نہیں ہوتا. یہ ابھی اس نے کہا میں نے امریکہ سے منگوایا, اس کا پتہ نہیں وہ کیا, وہ جو اوپر آئی کون سا ہوتا ہے وہ منگوایا. آپ نے اس میں دیکھا ہوگا, سن لیں, وہ جو نشان سا ہوتا ہے نا وہ والا. یہ سارے میرے خیال مرسڈی کے آئٹم تھے. مرسڈی تو جرمنی میں, امریکہ سے اس کو مل گیا ہوئے گا, سستا مل گیا ہوگا, یہ کسی دوست نے دے دیا ہوئے گا وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر اس وجہ سے ملک ترقی نہیں کرتے. انڈیا میں ہے کسی کے پاس اتنا بڑا بیڑا ہے؟ امبانی کے پاس ہے, یا اڈوانی کے پاس ہے, یا ٹاٹا کے پاس ہے, یا سجن جندال کے پاس ہے, یا اور بھی جتنے ہیں. لو سجن جندال کا آیا تو اگلوں نے وہ کرتے نا, ایک تو یہ دیکھ لیں ویزے کے بغیر نہیں آیا, پاگل ہے گا اپنی پبلسٹی پوری دنیا میں کروانی. انڈین وقت کے مطابق 10:20 پہ وہ ٹورا تو لاہور آیا 11:43 پہ. یہ لاہور کا ٹائم ہے. تو یہ اگلوں نے شیڈول بھی اس کا دے دیا تھا. تو یہ میں نے اس وجہ سے یہاں پہ کیا کہ وہ جناب علی وہ جو ہے, وہ جو ویزے سے آئی وہاں سے ایک ٹیلی فون کالز آ کے $1 کی جانی ہے, وہ پوچھتا پھرے گا ایمبیسی سے, تو بس پوچھتا پھرے. لیکن انہوں نے یہ جو تھا کر لیا وہ ویزے سے. یہ دکھانے جی آپ کو, یہ ٹی ٹی پی کسی وجوہات کی وجہ سے پوری نہیں دکھاتا ہے. پاکستان فوج کی چوکی انہوں نے
सर कर ली है पाकिस्तान फौज की, जो उन्होंने वो कर ली है, वो क्या कहते हैं जी, कैप्चर्ड कर ली है, वो उनको भगा दिया गया है, भगा दिया गया है जी। क्या किया जाए। अच्छा जी, एक और आपको दिखाएंगे। ये बताया राजा आदिल साहब कह रहे हैं जी 100 से ज़्यादा उन्होंने गिनने के तुक लगा के गिने थे। 80 तो हमने आपको स्नाइपर बता दिए थे कि उन्होंने चारों तरफ से फायर खोल दिए थे। तो ये राजा साहब ने, जनाब अली राजा साहब ने बाजा बजा दिया। और मुझे लगता, हम तो आपको पता ना कि सही बात करते हैं, लगता कि ये बीच में आवाज़ कुछ थोड़ी सी शामिल की हुई है, मुझे लग रहा है, लेकिन हम तो आपको पता सच बोलते हैं। ओरिजिनल ऐसी नहीं थी जो मैंने आपको शुरू में दिखाई थी। ओरिजिनल अल्लाह बेहतर जानता, किसी और एंगल से हो जहाँ पे ज़्यादा आवाज़ आ रही हो, लेकिन पिक्चर तो वही है। आवाज़ किस तरह कर दी अल्लाह बेहतर जानता। तो हम तो पता ना फ्यूज़ निकालते हैं। I am part of this country, so of course. How does it affect you? The politics of Pakistan, इतनी जो volatile politics होती है, कैसे? शाह साहब ने बड़ी अच्छी बात की थी, और मुझे लगता है जैसे पहले आपके पास इतनी लिबर्टी थी कि आप खुल के कोई बात कर सकते थे। दुनिया में ये असूल है कि अगर आपको किसी बात से इख्तलाफ है, आप उसका एहतजाज पुरअमन तरीके से कर सकते हैं। वो हमारे मुल्क में उसकी इजाजत नहीं रही। मुझे लगता है जैसे गुंडा राज बहुत ज्यादा हो गया है कि अगर हम अपने ये सभा कमर है, इसने कह तो दिया, इसके और उसके पीछे, वसीम अब्बास के पीछे लग गए हैं जी मुनीर ढक्कन के बंदे। तो इनको कहा जी, इनको खबरदार आइंदा से बुलाया तो बेचारी को, फनकारों को, अगर उसने यही कहा ना गुंडा राज है, गुंडा राज नहीं है, झूठ उसने बोला, तो चलो फिर ठीक है, फिर ऐसे ही होता, गुंडा राज ऐसे ही होता। अच्छा जी, फिर चले इनकी बेचारों के। एक और है कुरैशी, ये हैं जी नए वाले असिस्टेंट कमिश्नर जो भर्ती होके आए हैं। लौंडे लपाड़े बाजे की वजह से रोक दिया गया। इनको भी खुदा खौफी, गरीब किधर जाएं, प्यार से उनको समझाओ यार, इधर से चलो, अगर खड़े ही हो गए तो आगे पीछे कर लिया करो। तय बाजारी वाले अमले को ऊपर मुजस्टेड होता है जो कारपोरेशन को भी डील करता है। तो ये लौंडा लपाड़ा गया बाज़ारों में तो उनकी चीज़ें उठा के ज़मीन पे फेंक रहा है। बहुत बुरी बात है कि हर तरफ कोई देखा उनको, या तो कोई रोज़गार गवर्नमेंट ने देना ना, इन्होंने थोड़ा ही देना, गवर्नमेंट ने देना है। तो ये अपने तौर पे ये अच्छे पढ़े लिखे हैं, CSS करके आए हुए हैं। तो फिर CSS के माँ बाप ने ये सिखाया था कि डॉन बन के, वो जिस तरह एंग्री यंग मैन नहीं, अमिताभ बच्चन या वो था संजय दत्त बनते थे, तो इस तरह करके करते हैं जी। लो जी, आपके लिए एम्बुलेंस मंगवाई है, एम्बुलेंस ये है जी, हेलीकॉप्टर। आप नहीं जाती इसके ऊपर, ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का बोर्ड लगा, आप नहीं जाती, ये एयर एम्बुलेंस है, एयर एम्बुलेंस, ठीक है जी। जिसका चर्चा कर रही थी मैंने 5 नहीं दे दी। ये थक्कड़ से को रंग भी सही तरह नहीं किया, किसी नबीने ने, ये मेरे जैसे अन्य बंदे ने रंग कर दिया। तो ये एम्बुलेंस मिलेगी जी आपके लिए। अब पूछो जी, एक अभी आज तैयार हुई है, ये कहाँ पर रखेगा? लाहौर में रखेगा, हाँ जी। अगर मिस ऐप वहाँ हो जाए फैसलाबाद में, तो ये वहाँ तक पहुँचेगा अपनी खैर से। मरीम अपने लिए तो नए 3 अरब के हेलीकॉप्टर खरीदी, एम्बुलेंस के लिए कैसे खरीद रहे? आप देख रहे हैं कि भान पाकिस्तान। कायदे आज़म ठट्ठा के करीब एक कस्बा है झिरक, वहाँ पैदा हुए। अच्छा। और 1960 तक निसाब में पढ़ाया जाता रहा। हाँ। ये कंवर दिलशाद साहब से आप पूछ लीजिए, वो अच्छा। निसाब पढ़े हैं। हाँ। कायदे आज़म को
फिर कैसे कराची पैदा किया गया। हैदराबाद एक कमिश्नर सिद्दीकी साहब आए, उन्होंने कहा भाई बस कायदे आजम को कराची पैदा करना। पाकिस्तान का यौम कायदे आजम ठट्ठा के करीब एक कस्बा ये एक झिरक नई वहाँ पैदा शुरू हुए। हो गई है जी। और 1960 तक इसार राणा साहब आंसर है कंवर दिलशाद साहब से आप कि पूछिए कराची कि में वो पैदा हुए, फलां में पैदा हुए। कंवर दिलशाद वो उन्हीं सिंध का ही रहने वाला था जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहा, कि सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर रहा। तो ये वो था। तो कह रहे जी वो वहाँ ठट्ठा में पैदा हुए। तो कराची में नवाज शरीफ की भी तो डेट ऑफ बर्थ वो थी वो वाली शायद खाकान अब्बासी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के मुजरमाना गफलत की वजह से 10 अरब रुपए की गंदम गोदामों में पड़ी ख़राब हो गई। अल्लाह यह रहम करे खैबर पख्तूनख्वा की अवाम पर। ये ट्वीट किया जी आतफ रऊफ, मरियम का राइट हैंड है, पटवारी झूठ रज के बोलता है। शायद खाकान अब्बासी ने इसको खैबर पख्तूनख्वा में सेहत और तलीम के बदल खुराक के महकमे भी तबाही का हाल। वाह जी, अब ये कोई नई गेम डालना चाह रहा है। आपको पता मैं अब्बासियों के अहमियत नहीं खिलाफ हैगा, तो कोई नई गेम डालना पड़ रहा है कि तेरे यार इसका तेरे स्टेटस का है लौंडा जिसका तू कर रहा है, कि तूने वेरीफाई कर लिया। वहाँ पे तो गंदम सारी निकल जाती है, परे पठान भाई ले जाते हैं, तो वहाँ पे ज़ख़ीरा कहाँ से हो जाना। अच्छा जी, फिर एक और आपको दिखाना है जी, ये वाला ये आजकल सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो कह रहे हैं ये वाली फ़ोटो मास्क लगवाने के बाद, सर्जरी के बाद ये बन गई। वो अकल देने वो यूथी हो तो भैन, वो अलहदा बेटी है, ये मानूक की है, उसका खामद बिलियनर है, वो करवा सकती जहाँ से मर्जी कराए। इसका अभी कुछ नहीं किया। ये बेचारी इस तरह, जिस तरह सलमान खान की एक बहन है अर्पिता, सलमान खान की एक माँ हिंदू भी थी ना, उसमें से एक ऐसी आई, वो अर्पिता ऐसी है। ये और है तो ये और है, ये इसको डंड पेंटिंग करके ये नहीं कहा ये मानूर है, इसके तो बच्ची भी पैदा हो गई। कोई खुदा खौफी खैर को। काजमी साहब आप भी इन्हीं के पीछे लग गए हो, ऑस्ट्रेलिया में रह के कोई करो भी तो ढंग से करो। अगर आपने उसके ऊपर करनी भी है तनकीद करनी तो ढंग से तो करो ना। तो वो ये क्या वो नहीं करवा सकती। राहिल मुनीर के चौधरी शुगर मिल किसकी, चौधरी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री इमरान खान में किनका, इस्लामाबाद का एयरपोर्ट इन्होंने बनाया। इनके पास जहाज़ है, इनके पास हेलीकॉप्टर है, तो अपना भुताड़ भी सीधा नहीं करा सकते। अजीब व गरीब कर दे यार, मैं नहीं पसंद करता ऐसी चीज़ें। जी नाजरीन, मैं लेके आई हूँ नवाज शरीफ के लिए ब्लू लेबल की बोतल, न्यू ईयर का गिफ्ट। तो मैं यहाँ पे रखी उनके घर के बाहर, ब्लू लेबल फॉर नवाज शरीफ। ये हरीम शाह हैगी जी। पहली बात टगा टोकरी तो चुदवान वाली है, तो ये टिकटॉक इसने बनाया था, वहाँ लेके चले गए। वहाँ वो तो ताले लगे हुए हैं वहाँ पे, होते तो कोई आया ही नहीं सिवाय चौकीदारों का, तो रख के आ गए। और दूसरा, नवाज शरीफ शराब नहीं पीता। हाँ जी, हक सच की आपको बात करेंगे हम, तो झूठ तो बात करनी नहीं। नवाज शरीफ शराब नहीं पीता। देख के किधर हाथ लगे अपने यार जिसके तुम अंगूठे चूस रही, जिसने तेरी ब्लू फिल्म लीक की है नहाते हुए, तो इतना गंदा बंदे को शय बताइए तो वो भी बैठ जाए। ऐसा तेरा जिस्म है, कहते तू किस तरह की करते फिर। नवाज शरीफ शराब नहीं पीता, ये इसने वैसे टिकटॉक बनाना था उसको शराबी कहने का। हम सच बोलेंगे। 9 मई के और भी सारे इल्जाम आप ही के साथ डाले गए कल परसों तरसों जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और जी, और हम ये कहते हैं कि 9 मई इतना सादा मामला नहीं है। हम ये कहते हैं 9 मई जो है एक फ्रेम करने की एक मंसूबाबंदी का नतीजा है। कैसे ये मुमकिन था कि 10 मई को आपने 10,000 लोगों को गिरफ्तार कर दिया, उनकी लिस्टें आपके पास मौजूद थी, कोई था किसी जगह या नहीं था? आप रहीम यार खान तक गए, आप बहावलपुर गए, आप अटक गए, जहां आपने जिसको उठाना था उठा लिया। जिनका दूर दूर तक 9 मई के किसी वाक़े से ताल्लुक नहीं था, उन लोगों को भी आपने उठाया। तो लिस्टें आपके पास तैयार थी, सीसीटीवी फुटेज गायब हो गई और एक बयानिया बुन दिया गया। सर आप उन लोगों को बोल रहे हैं जिनको डील करने पर निकाला गया एफआईआर से, जो अब छोड़ दिए। बिल्कुल खुश खुरम जिंदगी गुजार रहे हैं, आपने बिल्कुल
9 मई के और भी सारे इल्जाम आप इनके साथ ये तो जनाब अली राजा साहब, अल्लाह इनके हाल पर रहम करे। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान, डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान, ये भी हमारा ही यूट्यूब चैनल है, साथ पैरेलल चलाते हैं कि ये कर्नल साहब को पजामा उतर कर लो तो वो बंद कराएं तो ये चलता रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।